Assalamualaikum. This video is for class 10. We are continuing with chapter locomotion. Swimming in fish. Now first we will read about the locomotory organs of the fish, that is muscles of fish. It contains V-shaped muscles which are called myotome muscles. They are arranged segmentally in each side of the flexible vertebral column. Vertebral column के दोनों तरफ V shape का muscles होता है जिसको myotome muscles बोलते हैं. By the contraction and relaxation of the myotome muscles on each side, it causes lateral undulation and propulsion. क्या होता है इसमें कि V shape muscles में एक बार राइट साइड का मसल जो है वो इन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट साइड का मसल जो है वो रिलैक्स करता है. तो उस वक्त क्या होगा कि फिश का बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा. उसके बाद राइट साइड वाला रिलैक्स करता है मसल्स और लेफ्ट साइड का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. So in this way, the fish moves in a zigzag motion under the water. When the muscle of left side contract, those of the right side will relax and the body will bend on the left side. And just opposite happens when muscles contract in the opposite side, the body bends towards the right side and lashing of the tail takes place. Now, this is the diagram of the movement of the fish, जिसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने के लिए. And the second locomotory organ are the fins of the fish. Fins are the appendages on the body of fish. The fins are membranous extension of the skin and are supported by fin rays. ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है. तो यहाँ पर जो फिन्स होता है फिश के बॉडी में वो मेम्ब्रेन्स, ऐसा लगता है कि मेम्ब्रेन्स का एक्सटेंशन है. और यहाँ रोहू फिश के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ फिन्स पढ़ेंगे हम लोग. देर आर 7 fins present in the रोहू फिश. 1 pair of pectoral fin, 1 pair of pelvic fin, and 3 unpaired fins which are caudal fin, anal fin and dorsal fin. अब पेक्टोरल फिन का पोजीशन क्या है, कहाँ पर होता है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ओपर्क्यूला. ओपर्क्यूला बोलते हैं द बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फिश विच कंटेन गिल्स, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश. एंड पेल्विक फिन इज अटैच्ड विद द वेंट्रल साइड. Now what are the caudal fin? The caudal fin is located at the end of the tail. इसको टेल फिन भी बोलते हैं. ये डायरेक्शन लोकेट करने में हेल्प करता है. एनल फिन इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल साइड एंड इट हेल्प्स इन द excretory process of excretion. Dorsal fin located at the mid dorsal line. This is the dorsal fin. ये क्या करता है? ये वाटर सरफेस में स्विम करने में, वाटर सरफेस एरिया में स्विम करने के लिए वाटर को आसपास से हटाने में काम करता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फिन्स? इसका भी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द फिन्स इन द स्विमिंग ऑफ फिश? इसमें आपको चारों पॉइंट लिखना है. द फिन हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फिश. Pectoral and pelvic fin helps in animals in keeping the body in horizontal position. Dorsal fin facilitates the anterior movement. The tail fin acts as a steering apparatus for change of the direction. The anal fin maintain the vertical position of fish. तो ये सब के बारे में सभी फिन्स का फंक्शन आ गया इसमें. तो ये चारों पॉइंट जो है आपको रोल ऑफ फिन्स में लिखना होगा. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज locomotion in pigeon. 3 important organs are necessary for flight in birds. These are wings, feathers and flight muscles. Now it is supposed that the forelimbs of the birds are modified into wings. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. Which part of body are supposed to be modified into wings in the case of birds? इसमें आंसर लिखना होगा forelimbs. Wings are complex structure consisting of bone, muscle, nerve, blood vessel and feathers. Functions of the wings. During flight, the wings are expanded and flapped by the action of flight muscles. In resting condition, the wings are folded on the body. ये देखिए ड्यूरिंग फ्लाइट उसका कैसे फ्लैपिंग और एक्सपेंशन होता है विंग्स का, और रेस्टिंग कंडीशन में विंग्स आर फोल्डेड डाउन. Now feathers. They are leaf-like structure consisting of vein, barb and barbules. Feathers on birds are of different shape and size. The big size feathers on wings are called remiges and the big feathers on the tail are called rectrices. Remiges helps in flapping while rectrices helps in steering during flight. ये क्वेश्चन आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आया है 10 years में. व्हाट आर रेमिजेस एंड रेक्ट्रिसेस? फेदर्स जो विंग्स पर होता है उसको रेमिजेस बोलते हैं, और जो टेल पर जो फेदर होता है उसको रेक्ट्रिसेस बोलते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फेदर? The feather greatly increase the surface area of wings and helps in the flight.
क्या होता है, वो एयर के रेजिस्टेंस को कवर करने में हेल्प करता है। दे हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ना है ना। फ्लाइट मसल, you have to remember the name of the flight muscles. Some important muscles in the body of birds are very strong. They are pectoralis major. It helps in downstroke of wing. Pectoralis minor. It helps in elevating the wing, and coracobrachialis helps in depressing the wing. You see the next part, page number 74. Locomotion in human being. Walking is a common form of human locomotion. The process of walking takes place with the help of two legs by the alternate contraction and relaxation of muscles, movement of synovial joint, etc. Since in human body the locomotion takes place by the alternate movement of two legs, so it is called the bipedal locomotion. ये एग्जाम में इस पैराग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाइपेडल लोकोमोशन। इसका आंसर आपको लिख करके मिल जाएगा। Now, you don't have to remember the stages of bipedal locomotion, but just remember this last 2 points, F and G. During walking, there is an alternate swinging of the arm. That's we see in the case of march past, we swing our right arm with the left leg and left arm with the right leg. In this process, it helps to maintain the balance between the right and the left side of the body. So, normally we walk like this. Now, what are the major part of the brain which helps in controlling the body posture? सेरिबेलम ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी पोस्चरल बैलेंस ड्यूरिंग लोकोमोशन। मैंने हम लोग को चलते वक्त बॉडी को बैलेंस कैसे रखते हैं, मैंने पोजीशन चेंज कैसे करते हैं, चलना है या मूव करना है, राइट साइड लेफ्ट साइड घूमना है, तो हम लोग को ब्रेन का कौन सा पार्ट उसमें हेल्प करता है, सेरिबेलम। इट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। एंड विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन maintaining the body balance, that is internal ear of man plays a very significant role of body balance during walk. So you have to remember this name for the objective. See in the page number 75, the role of movable joints and skeletal muscles in human locomotion. इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन रहता है. The bones are made up of living osteoblast cell. Let's remember the name of cell with high concentration of calcium and other mineral salt. Remember the name of element present in bone, that is calcium. हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए अच्छा होता है ना, क्योंकि बोन जो है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है. नाउ सी जॉइंट्स. These are junctional point where two or more bones join. There are three principal pattern of the bone joints. हम लोग कैसा देखते हैं, जॉइंट जहाँ पर दो तरह का हड्डी जो है वो मिलता है या जुड़ता है उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं. जैसे एल्बो हुआ, नी हुआ. तो कितने तरह का जॉइंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है. मेनली थ्री पैटर्न, इमूवेबल जॉइंट एंड सेमी इमूवेबल जॉइंट. इमूवेबल क्या है, वेयर द बोन्स आर फर्मली जॉइंट टुगेदर, दैट इज जॉइंट ऑफ स्कल बोन. स्कल बोन में देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्कल का डायग्राम है. इसमें जो जिसके अंदर ब्रेन रहता है स्कल के पोर्शन में, वहाँ पे देखिए यहाँ पे लोब्स बना हुआ है विच आर जॉइंट टुगेदर. ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं हो सकता है. दूसरा है सेमी इमूवेबल जॉइंट, वेयर द जॉइंट्स अलाउ द लिटिल फ्लेक्सिबल मूवमेंट, दैट इज जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये क्या है, सेमी इमूवेबल, थोड़ा मूव करने देता है या फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है. जैसे कि स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पर होता है बैकबोन में, जो बॉडी पोस्चर चेंज करने में, हम लोग को बैठने में, लेटने में, खड़े होने में बॉडी पोस्चर चेंज करने में हेल्प करता है. तो वो कैसा जॉइंट है, सेमी इमूवेबल जॉइंट. हमको जॉइंट का नाम याद करना है और उसका एग्जाम्पल. मूवेबल जॉइंट में क्या है, मूवेबल जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट, वेयर द जॉइंट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ बोन इन डिफरेंट डायरेक्शन. उसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर नी जॉइंट का डायग्राम बना हुआ है. एक मूवेबल जॉइंट है जहाँ पर दो तरह का बोन आपस में जुड़ा है और उसके चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड. There is a cavity known as synovial cavity filled up with the synovial fluid that act as a lubricant. The whole cavity is lined of synovial membrane. The bones are interconnected by the ligament. क्या होता है, बोन्स के चारों तरफ एक लिक्विड होता है जो उसके फ्रिक्शन को रोकता है. फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से बोन्स खराब नहीं होता है और उसमें एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जॉइंट. तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ पढ़ना है व्हाट इज सिनोवियल जॉइंट. इसका आंसर हम आपको मार्क करा देंगे. Important movable joints are ball and socket joint and hinge joint. So these are the example of movable joint. इसका नाम याद करना है, ball and socket joint and hinge joint. अब ये ball and socket joint टाइप का नाम है. ये हम लोग के बॉडी में कहाँ पर होता है. This type of joint is formed when a
rounded head or ball of one bone fits into cup shaped socket of another. यानी कि बॉल शेप का एक एंड ऑफ द बोन का शक्ल कैसा है, बॉल की तरह है, और दूसरे बोन का शक्ल है कप की तरह। तो वो कप के अंदर बॉल जो है वो फिट हो जाता है। दैट इज हेड ऑफ अ ह्यूमरस अपर आर्म फिट्स इनटू द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। यानी कि शोल्डर के हड्डी में देखा जाता है कि आर्म्स का हड्डी जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह उसमें जाके फिक्स हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम लोग अपना शोल्डर जो है वो राउंड अबाउट जो है वो मूव कर सकते हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल ओनली बिकॉज इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कॉमनली इट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर शोल्डर जॉइंट आर्म जॉइंट से जाकर शोल्डर बोन आर्म बोन से मिलता है और जॉइंट प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हिप जॉइंट, जिस नाम याद करना है जॉइंट का। दूसरा टाइप है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट किसको बोलते हैं? इन दिस जॉइंट द बोन्स मूव लाइक द हिंज ऑफ अ डोर इन वन प्लेस ओनली। माने एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे डोर पे या विंडो पे जो दरवाजे पे हम लोग कैसे एक तरफ खुल सकता है दरवाजा, उसको हिंज बोला जाता है। लाइक आवर एल्बो और आवर नी जॉइंट, जो एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है, जैसे कि वो राउंड अबाउट चारों तरफ नहीं घूम सकता है, जिसको बोला जाता है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट का नाम और उसका 2 एग्जाम्पल एल्बो एंड नी जॉइंट, ये याद करना है। इसके बाद दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह का मूवमेंट होता है। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें से सिर्फ टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ना है, और इस डायग्राम में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन है ना कि किस तरह से ये मूवमेंट होता है। सपोज फ्लेक्शन, movement around the frontal transverse axis and during movement the angle between the bones become more acute। तो ये फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए जैसे हाथ जो है वो इस तरह से घुमा सकते हैं कि बॉडी के वो एंगल में एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। तो इसी तरह से मूवमेंट का नाम और वो कैसे होता है उसका डायग्राम यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जिसको एक बार रीड कर लेना है। This is the end of the video. Thank you.